Good morning, friend. We are discussing the Visa 5 question. Let's discuss the first question. First question related to the Supreme Court is asking about the some of the statement in regarding the Supreme Court. Number first statement said like its original jurisdiction is confined to federal case. You know very well about Supreme Court 131 Article 131 is related to the original jurisdiction, that is related to federal case. What do you mean by the federal cases? Center state relation, state relation. Whatever the case is related to them, they are going to the Supreme Court, whether, and it is the original jurisdiction. It means that they have to listen these type of cases, and no other cases can go like that. Number second, it's habilitated jurisdiction in which they have to give the appeal. For example, there is a subordinate court and then is a high court and high court to the Supreme Court. These type of things is said to be a habilitated jurisdiction that is confined to civil and criminal cases only. Number third, under its advice jurisdiction, for example, Supreme Court has to advise the president in all the matter. So third statement is like that, and you have to choose the incorrect statement there, not the correct statement, and option are these: first and second, second and third, first, second, third. I can repeat the question for the better understanding question. Consider the following statement regarding the Supreme Court. Number first statement said like its original jurisdiction is lied to the federal cases. Second, its separated jurisdiction is confined to the civil and criminal cases. Number third, under its jurisdiction, advises jurisdiction, Supreme Court has to advise the president in all the matter, and option are these, and you have to choose the incorrect option from them. Let's see the next question. Next question is related to the environment section. They are asking about the compost tea refers to. With regard to the organic farming, the term compost tea refer to, let's see, the first statement regarding liquid fertilizer for flower, vegetable and house plant. Second statement is that like that a new organic variety of tea being cultivated in India. Number third, a type of a dust that is used as manure to increase the crop productivity. And fourth option is none of the above, whatever the given. I can repeat the question. With regard to the organic farming, the compost tea refers to liquid fertilizer for flower, vegetable and household, so that their efficiency can be high. Second is a new type of variety of tea so that they can be cultivated in India. Number third, tea dust that is used as a manure to increase. For example, there is, when you know very well, tea has a leaf. Leaves are exported to other country, and whatever be the left is that we using generally in tea in our household, just morning tea like that. So that tea dust are collected and can be used as to manure to increase the crop productivity, right? Or none of the above. Let's see the next question. Next question is related to the art and architecture, in which they are asking about the temple architecture. Okay, temples and scripture that are associated with it. Number first is Ajanta, you know why, that are found in the Maharashtra region. Oh, that is related to the Ravana shaking Mount Kailash, so that are found there. Second is the Elephanta cave, Trimurti type of sculpture are present there. Number third is Konark, Surya riding chariot are found there. So you have to choose the correct option from the given option regarding these type of temple and the sculpture that are found there. Let's see the option here. Temple and sculpture: Ajanta, Ravana shaking Mount Kailash. Second, Elephanta cave, Trimurti found there. Number third, Konark temple, Surya riding chariot is there. And option are first and second, third, second, third, first, second, third. Let's see the next question. Next question is related to the, you can correlate it with the history section. They are asking about, consider the following bodies, and first is Calcutta Unitarian Committee, second is the Tabernacle of a New Dispensation, number third is the Indian Reform Association. Okay, let's see the Keshav Chandra Sen is associated with which of the following establishment, and option are these: first, third, second, third, first, second, third. I can repeat the question for the greater understanding of the question. Consider the following statement regarding the Keshav Chandra Sen. तो इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जिसके साथ वो एसोसिएटेड थे? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, सेकंड इज द टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, नंबर थर्ड इज इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ऑप्शन आर दीज. Let's see the next question. Next question is related to the economic sector. Asking about the WPI Wholesale Price Index. Publishing agency is Office of Economic Advice, Ministry of Consumer and Industry. Second is the CPI Rural Labor Bureau. Number third, GDP Deflator, Central Statistical Office, that are determine these things, and you have to choose the correct option from the given option. First, second, third, first, second, third. I can repeat the question. Which of the following are correctly matched? Number first is Index and Publishing Agency, WPI, Office of Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry. Second is UPI Rural Labor Bureau, GDP Deflator, CSO, and option are these. Let's see the answer of the first question. Okay, consider the following statement about the Supreme Court. Its original jurisdiction is confined to federal cases. I think
See, here all three statements are wrong. Its original diction is confined to federal cases. No, there is nothing like that. Federal cases को सुन ही सकता है, बाद में अदर केसेस को भी सुप्रीम कोर्ट सुनता है हमारा. एपिलेट जुरिडिक्शन जो कन्फाइंड हमारे सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के लिए ही नहीं है, बल्कि जो ट्रिब्यूनल से जो भी केसेस आते हैं तो वो भी सुन सकता है. बात करते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन की. सुप्रीम कोर्ट के पास बाइंडिंग जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस देनी होती है, बाइंडिंगली मतलब देना ही होता है सुप्रीम कोर्ट उस केसेस में जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी रही हो. तो उस केस में प्रेसिडेंट को अनिवार्य होता है सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस देना. अदरवाइज देयर इज नो कंपल्शन ऑन द पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट दे गिव टू एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन ऑल मैटर, राइट. सो ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट. सो हियर आंसर इज डी. Let's see the first statement. Supreme Court has the exclusive jurisdiction in federal cases. However, it is not limited to only federal cases. For example, its original jurisdiction with regard to the violation of fundamental right is under Article 32. जो भी हमारा फंडामेंटल राइट रीट इशू करने का जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिया गया है. और तो पार्लियामेंट उसमें चेंज कर सकता है, बट ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट नहीं, आई थिंक इन 1950 इट एक्सटेंडेड टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड केसेस, सेकंड एप्लीटेड जुरिडिक्शन जो है सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के लिए ही अवेलेबल है. नहीं, एप्लीटेड जुरिडिक्शन की बात करें तो कवर कॉन्स्टिट्यूशन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सिविल एंड क्रिमिनल केसेस भी वहाँ पे लिए जाते हैं. Third statement, if you are talking about under its advisory jurisdiction, Supreme Court has to advise the President in all matter. Let's see. The Constitution as per the article under 143 authorizes the President to seek the opinion. तो इस आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांग सकता है टू कैटेगरी की केसेस में ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और द फैक्ट ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज़ अराइजन लाइक टू. मतलब क्या है कि कुछ ऐसे चीज़ें जो समय समय पर अराइज होती रहती है, कुछ ऐसी कंडीशन जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से लॉ एंड ऑर्डर वट इज द वैलिडिटी इज इट टैली विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो जो है प्रेसिडेंट उनसे एडवाइस मांग सकता है. सेकेंड केस में बात करें तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन अगर ट्रीटी होती है या फिर कन्वीनियंट एंगेजमेंट स्टैंड एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल प्रेसिडेंट को ओपिनियन देनी होती है. बट ये ओपिनियन जो है प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, बट ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बाइंडेड है कि उनको ओपिनियन देनी ही होगी. अदर मैटर के लिए वो मना भी कर सकते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. If you are talking about the compost tea, that is related to the liquid fertilizer for flower, vegetable and house plant is related to it. Let's see the explanation of the answer. Compost tea is a liquid fertilizer for flower, vegetable and household. It is an aerobic it means it utilizes oxygen water solution that has extracted the micropopulation from compost along with the nutrient. It is a concentrated liquid created by the process to increase the number of beneficial organisms as an organic approach to plant or soil care. Air is sent through the water to keep the water oxygenated as it favors the beneficial bacteria and fungi over the pathogen. At the end of the brewing cycle, a concentrated liquid is left behind with the billions of microorganisms so that is utilized so that they can fermented the whole soil. The liquid fertilizer occupy the infectious site, तो लीफ सरफेस पे जहाँ पे उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है. लेट्स सी अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड द आर्ट एंड आर्किटेक्चर. अजंता केव रावना शेकिंग माउंट कैलाश, डेट इज इनकरेक्ट. एलिफेंटा केव त्रिमूर्ति यहाँ पे दिया गया है. और यहाँ पे जो धर्म की अगर हम बात करें हिंदुइज्म से रिलेटेड, जैनिज्म से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड, तीनों की यहाँ पे मूर्तियाँ पाई जाती हैं. और ये बहुत ज़्यादा पास में ही पड़ता है अजंता, और ये भी महाराष्ट्र में ही पाया जाता है. कोणार्क की बात करें तो यहाँ पे सूर्य राइडिंग चैरिट भी पाया जाता है. और ये ऐसी ही चीज़ हम्पी में भी पाई गई जो तुंगभद्रा नदी के ऊपर है. तो सेकेंड थर्ड यहाँ पे सही है. एलिफेंटा केव त्रिमूर्ति, कोणार्क, सूर्य राइडिंग चैरिट. फर्स्ट इज इनकरेक्ट. लेट्स सी द थिंग देयर. Sculpture of Ravana shaking Mount Kailash is at the Kailash temple that is found in Ellora, Maharashtra. That is a magnificent sculpture at Ellora that is a panel depicting Ravan shaking Mount Kailash. In this remarkable scene, the quivering of the mountain can be felt. तो quivering का मतलब ये होता है कि जो डरना कह सकते हैं. And Parvati is shown greatly agitated, turning to Shiva, grasping his hand in fear, while her maid takes to flight, but the great god is unmoved and hold on fast, pressing down the mountain with his foot. तो यहाँ पे पूरा का पूरा सीन क्रिएट करने की कोशिश की. यू नो वेरी वेल माउंट कैलाश इज नोन फॉर द गॉड शिवा एंड हर वाइफ दैट इज देवी या फिर देवी पार्वती यू कैन से, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द रावण, शिव एंड हर वाइफ, एंड अबाउट द होल रिलीजियस स्क्रिप्चर दैट आर गिवन रामायण. तो यहाँ पे एक उसी को ही रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है. त्रिमूर्ति, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फेमस त्रिमूर्ति स्क्रिप्चर दैट इज फाउंड इन एलिफेंटा केव, महाराष्ट्र. द केव श्राइन एट एलिफेंटा इज अनदर ग्रेट मोन्यूमेंट जो राष्ट्रकूटा किंगडम के द्वारा बनाया गया था, और उन नाम है उनका महेश मूर्ति. द थ्री हैड इमेंटिंग फ्रॉम वन
एंड द सेम बॉडी रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द लॉर्ड शिवा। तो ये जो त्रिमूर्ति है तो ये एक ही बॉडी है लेकिन 3 फेसेस है और इसमें 3 एस्पेक्ट लॉर्ड शिवा के डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। द सेंट्रल फेस जो है वो बहुत काम और डिग्निफाइड को अपीयर करते हुए दिखाए गए हैं। और सेकंड है लेफ्ट जो वाला है उसमें क्रिएटर का रूप धारण किया गया और लास्ट वाला शायद डिस्ट्रॉयर का है। आप जानते हैं लॉर्ड शिवा इज नोन फॉर द क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द थिंग और होल थिंग। Number 3, a Konark Surya riding chariot is also found. Let's see, the famous temple at Konark was built by the Narshivarman in the middle of the 12th century and depicted to Surya on the sun god। तो यहाँ पे सूर्य को सन गॉड जो है उनको 12th century में नरसिम्हा राव के द्वारा ये बनवाया गया था। It has been conceived as a huge stone chariot on immense wheel dragged by 7 rearing horses। Temple is now partly preserved, presiding deity the sun god as seen here is depicted in the typical North Indian manner, wearing boot, chain, mail armor, holding a lotus in each hand. He is a riding chariot driven by 7 horses. On each side are his 2 wives, छाया एंड सुरवच्छा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं वो उनकी जो सूर्य भगवान की 2 वाइफ है वहाँ पे उनको दिखाया गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। केशव चंद्र सेन जो केशव चंद्र सेन है किस किस चीज़ से एसोसिएटेड? तो टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के द्वारा वो रिलेटेड थे। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी डेट इज नॉट एसोसिएटेड विद हिम। लेट्स सी द थिंग। राजा राम मोहन रॉय अलोंग विद द्वारका नाथ टैगोर एंड विलियम एडम एस्टैब्लिश द कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट केशव चंद्र सेन वाज नॉट एसोसिएटेड विद इट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। लेट्स सी। तो जो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी थी उसके राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर एंड विलियम एडम जो है इस चीज़ से एसोसिएटेड। टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्कशन इन 1823 केशव चंद्र सेन ऑन 24 जनवरी 1868 केशव laid the foundation stone of his new church that is the ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन। तो मतलब जब उन्होंने ब्रह्मो समाज का विघटन हुआ था तो एक न्यू ब्रांच जब उन्होंने बनाई थी तो उसी फॉर्मेशन को उन्होंने नाम रखा था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन। एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड चौपाल जो है इसी अपने विचार को प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ाने का जो चौपाल तरीके से बनाया गया था वो यहाँ पे पूरा नाम इसका दिया गया और वो बनाया गया था 22 अगस्त 1869। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन फॉर एग्जांपल 29 अक्टूबर 1870 केशव चंद्र सेन को उसने ही बनाया था और ये उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। और इस जब उन्होंने बनाया उनका मेन मोटिव ये था कि वो सर्कुलर साइड जो ब्रह्मा समाज की है वो दिखाने की कोशिश करें। Let's see the next question. Next question is related to the WPI, CPI and GDP deflator. Which of the following institution publishing these type of indexes? GDP deflator जो एक स्टैंडर्ड बनाने का काम करती है CSO ही करती है। वैसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भी है जो BIS एक्ट के अंदर उस काम को करती है। बट यहाँ पे GDP की बात करें तो सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस है जो इस इंडेक्स की पब्लिशिंग एजेंसी है GDP डिफ्लेटर। WIP फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको करती हैं। बात करते हैं CPI रूरल की तो मेरे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही करती होगी। First is not correct, so is correctly matched because Office of Economic Advisor under the Ministry of Commerce and Industry is publishing it। CPI Industrial Work if you are talking about या फिर CPI Agriculture Labor, CPI Rural Labor जो लेबर ब्यूरो द्वारा पब्लिश किया जाता है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। बात करते हैं CPI रूरल, CPI अर्बन, CPI कंबाइन की तो CSO डेट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत किया जाता है। GDP डिफ्लेटर CSO ही करता है। लेट्स सी द थिंग रिवीजन टाइप ऑफ थिंग that is प्रधानमंत्री रोजगार प्रत्योषण योजना a scheme to incentivize employment that are in the news। let's see the things that are given by the vision itself। what is it? प्रधानमंत्री just a minute प्रधानमंत्री रोजगार प्रत्योषण योजना एक स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है एम्प्लॉय के वर्क को ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प कर सके। वो डेट गवर्नमेंट जो है फुल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को देने की कोशिश करती है जिसमें 12% EPF जो है जो भी कमाते हैं मतलब फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपये कमा रही हूँ तो 12 रुपीज़ फॉर एग्जांपल इनमें से मुझे कुछ कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी सिक्योरिटी वगैरह में गवर्नमेंट की और 12% ही ऐड करती है हमारी गवर्नमेंट ताकि ये 24% हो जाए 24 रुपये हो जाए ताकि एंड इस पे इंटरेस्ट मिले। तो यही एक इंसेंटिवाइज करने का तरीका है गवर्नमेंट का ताकि वो हर एक पर्सन कोशिश करें कि वो जो है जॉब ले नॉट इन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वट एवर का सेक्टर वुड बी। वो डेट गवर्नमेंट इज पेइंग फुल कंट्रीब्यूशन द एम्प्लॉय 12% टुवर्ड द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसी के साथ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर न्यू एम्प्लॉय को भी अप्रैल 1 2018 से कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करने की बात की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। इस योजना के तहत 1.2 लाख करोड़ बेनिफिशरी अभी तक
हुए हैं इनके। सलाइन फीचर क्या है इस पूरी की पूरी स्कीम के? ये जो है 2016 में लॉन्च की गई थी और जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज EPFO। अर्लियर दिस स्कीम वाज प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड EPS ओनली। ऑल एस्टेब्लिशमेंट एंड एम्प्लॉय मस्ट रजिस्टर विद EPFO। जितनी भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट है जी, कोई भी फैक्ट्री है, छोटी बड़ी MSME कुछ भी हो सकते हैं, उनको रजिस्टर करना होता है EPFO के। और ये ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक सेक्टर में ही हो, प्राइवेट सेक्टर कैन बी देयर, बट यहाँ पे कुछ लिमिट होती है। एम्प्लॉय मस्ट हैव अ लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर सो दैट दे कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम द फॉर्मल टाइप ऑफ जॉब। द एलिजिबल एम्प्लॉय मस्ट हैव एडेड न्यू एम्प्लॉय टू हिज एस्टेब्लिशमेंट हु मस्ट हैव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। आधार जो है उसके पास होना चाहिए, मतलब अगर आप EPFO में अपना जो अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, या फिर हैज़ नॉट वर्क इन एनी EPFO रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट इन द पास्ट प्रायर टू अप्रैल। अगर इस योजना का फ़ायदा उठाना है तो अप्रैल 1, 2016 से पहले आपको कहीं और EPFO का अंडर आपने रजिस्टर किया नहीं होना चाहिए। मस्ट बाय अर्निंग, और वो जो है उस पर्सन को 15,000 कम से कम पैसे कमाते हुए होना चाहिए। जो बेनिफिट इज़ गिवन टू द पीरियड फॉर द फर्स्ट 3 ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो पहले 3 साल के लिए उनको जो है हेल्प करने की बात की है इस स्कीम के अंडर। इन केस सच अ न्यू एम्प्लॉय चेंजेस हिज जॉब, अगर कोई भी पर्सन चेंज करता है अपनी जॉब को न्यू एस्टेब्लिशमेंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल स्विच करता है, या फिर उसके पास ज़्यादा हायर डिग्री आ गई है तो प्रमोशन वगैरह होता है, दूसरी कंपनी में जाना अगर उसको पड़ जाता है, जो न्यू एम्प्लॉयर है कैन अवेल बेनिफिट द रिमेनिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो जो बाद का बचा हुआ है 3 ईयर से पहले, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने 2020 में नौकरी की है और 2023 में, फॉर एग्जांपल 2017 को मान लो, 2017 में, एंड 3 साल के लिए ये जो है वैलिड है। अगर मान लिया जाए मेरी 2018 में मैंने स्विच कर दिया है, लेकिन बाद के जो लास्ट के 2 मंथ हैं उसमें भी मुझे हेल्प मिलेगी। ऑल दो ये जो पैसे की गिनती है और जो टर्म एंड कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी, बट ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, बट बेनिफिट मिलेगा जो भी आपकी करंट सैलरी एट मार्केट प्राइस है। द टर्मिनल डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर बेनिफिशरी इज़ 31 मार्च 2019। द एंटायर सिस्टम इज़ ऑनलाइन एंड आधार बेस्ड, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि बहुत अच्छी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इट इज़ बीइंग दैट ऑल द डिटेल कि आप पहले कहाँ पे काम करते थे, उससे पहले कहाँ काम करते थे, क्योंकि आपके आधार कार्ड में उनके पास पूरा डाटाबेस है, पहले रिकॉर्ड है, तो अच्छी तरीके से इवैल्यूएशन किया जा सकता है। बेनिफिट क्या है? इंसेंटिवाइज मिलता है MSME को। सेकंड है जॉब क्रिएशन होती है, और पर्सन इंसेंटिवाइज होते हैं कि वो जॉब लें। जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है, फॉर एग्जांपल LIC की पेनिट्रेशन इस टाइप ऑफ एक्टिविटी से बढ़ जाती है, तो ये इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। और द ऑर्गेनाइज सेक्टर टू द वर्कर और द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। प्रपोज टू इंक्लूड अनएम्प्लॉयड पर्सन हु आर सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। बात कर ले आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को एम्प्लॉय शेयर को टोटल 24% ऑफ कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया गया फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक एंड क्रिएशन ऑफ अ न्यू एम्प्लॉयमेंट। इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 से इसको ये जो है लागू हो जाएगी, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है 24% EPF जो पहले 12% था वो 24 देगी गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, कंट्रीब्यूट करती है 12% एम्प्लॉय शेयर एंड 12% एम्प्लॉय शेयर अंडर EPF 20%। तो अब ये देख सकते हैं न्यू एस्टेब्लिशमेंट पे जहाँ पे 100 एम्प्लॉय काम करते हैं उसके लिए लागू होता है। लेट्स सी द इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस एंड हिल ऑफ द सेंट्रल इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली जो रेंज आती है वो काराकोरम है, सेकंड है लद्दाख है, थर्ड जांस्कर है, देन पीर पंजाल है एंड धौलीधर रेंज है। ये आपको ये क्रम याद होना चाहिए, राइट। बात कर ले रहे हैं यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया की, तो यहाँ पे अरावली रेंज है, यहाँ पे माल्डा रेंज है, विंध्या रेंज है, कैमूर है। याद रखिएगा कैमूर, और कैमूर से ही जो सोन नदी बहती है जो गंगा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है और जो डायरेक्ट जाके मिलती है कहाँ पे, गंगा पे, तो वो कैमूर से अलग हो जाती है, मतलब वो नॉर्थ की तरफ जाती है अमरकंटक से और यहाँ पे मिल जाती है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये कैमूर से डिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्ट की तरह काम करती है, राइट। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाती है, ये यमुना वगैरह या फिर कहीं और डायरेक्शन नहीं लेती। रीज़न मैं बताने की कोशिश करें। बात करते हैं सतपुरा रेंजेस की। यहाँ पे है रामगढ़ माउंटेन, अजंता, सतमाला रेंज, हरीशचंद्र, बालघाट रेंज, नल्ला मल्ला, ये आपको पता होना चाहिए, नल्ला मल्ला, नीलगिरी, जवदी, अन्यमलाई एंड शिवरोई। ये पूरा का पूरा जो एक आप यहाँ पे कोड बना सकते हैं। डोडा बेट्टा यहाँ की जो पेनिनसुला की है, नहीं पेनिनसुला की जो हाईएस्ट पीक है वो नाईमुड़ी है, उसकी हाइट आपको बतानी है मुझे कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे देख लीजिए गारो, खासी, जयंतिया, नागा, मिज़ो, और यहाँ पे डाफला, मिशमी करके कुछ बहुत सारी यहाँ पे रेंजेस पाई जाती है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पासेज है, जैसे बुरजिल पास है, पीर पंजाल, बनीहाल, डेटर फाउंड जम्मू एंड कश्मीर एंड बारालाचा हिमाचल, शिपकीला हिमाचल है, माना लिपू लेक इन उत्तराखंड, जोजिला पास इन लद्दाख, जेलपा, नाथुला इन सिक्किम, जम्बूमला, डिफलू, तुजू पास इन मणिपुर, आई थिंक यस मणिपुर। और यहाँ पे थाल घाट,
बोरघाट, पालघाट, ये यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे बहुत कम रेंजेस है या फिर ये कह सकते हैं पासेस पाए जाते हैं इन साउथ इंडिया। बाय दिस वी